तो yesterday हमने कर लिया था फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम। एंड ये थोड़ा वहां पे टेक्निकल फीच आ गया था, तो मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ। टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए फोर स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, we have four strokes have been shown on the turning moment diagram of a four stroke cycle internal combustion engine. So we have first one is the suction stroke, second one is the compression stroke, and next one is the working stroke, and last one is the exhaust stroke. So you can see there is a small negative and positive loop has been formed in the suction stroke because work is done on the gases and as well as work is done by the gases in case of the suction stroke. But only in the case of the compression stroke, the work is done on the gases and large amount of pressure has been reached in the case of the compression stroke. So large negative loop is being formed in the case of compression stroke. You can see in the diagram also a large negative loop in the case of compression stroke has been formed because high pressure is being achieved in the case of the compression. The mixture of air and fuel is being compressed at the extreme level. And next is the expansion stroke, or you can see the in this case the work is done by the gases on the system. So there is expansion of fuel takes place, there is a burning of fuel takes place. So expansion of piston cylinder arrangement will takes place, and the ignition of fuel takes place in this stroke. That is why it is known as power stroke or working stroke. So a very large positive loop has been formed in the case of the working stroke or the power stroke. You can see a maximum amount of turning movement has been achieved in this stroke. And last one is exhaust stroke, and again the work is done by the gases and on the gases, and therefore a, a mixture of negative and positive loop has been formed in the exhaust stroke. So you can see this is a mean torque line where a mean value of turning moment is being calculated by the taking the average of the maximum turning moment and the minimum, that is zero turning moment. So it is t maximum plus 0 divided by 2, that will give us the value of the t mean. So maximum value is being achieved in the case of the working stroke or the power stroke, that is the maximum positive loop, and the minimum value is being achieved at the is taken as a 0. But as soon as the concern of the minimum value is being achieved in the case of the compression stroke. You can see a very large negative loop is being formed in the case of the compression stroke. So the limit, that is the maximum value of the turning moment diagram, is achieved in the case of the working stroke, and the minimum value of the uh, turning moment is being achieved in the case of the compression stroke. So the difference may be also known as the fluctuation of energy. So next one is the turning moment diagram for a multi-cylinder engine. You can see a multi-cylinder engine, there will be more positive and more negative loops has been formed in the case of the multi-cylinder engine. If let us say I'll take the example of a three-cylinder engine. So in the case of the three-cylinder engine, all the cylinders are usually placed at an angle of 120 degree to each other. So a separate turning moment diagram for a compound steam engine having three cylinders, and the resultant turning moment diagram along the y-axis and crank angle along the axis is been shown in the figure. You can see the resultant turning moment diagram is the sum of the turning moment diagram of the three cylinders. तो तीन cylinders की जो diagrams हैं उनको हमने क्या किया है, sum कर दिया, और यहाँ पे हमने उसको collectively एक ही figure पे हमने show किया है. तो you can see the blue line, it is for the cylinder 1, turning moment for the cylinder 1. So the dotted line, that is you can see for the cylinder 2, and the thick continuous line that you have already read in the case of the engineering drawing. So this thick continuous line is being for the cylinder 3. तो यहाँ पे ये बात नोट करने वाली बात है, the first cylinder is a high pressure cylinder. You can see always a positive loops are being formed in the case of the blue line, that is for the first cylinder. Second cylinder is you can see a negative loop is also being formed. There is no maximum turning moment is being achieved here, so it can be say that this second cylinder is the intermediate cylinder one. And third cylinder, you can see a pressure a uh, low level graph is being formed in the case of cylinder 3. So you can see third cylinder is a low pressure cylinder. The crank of these three cylinders are being placed at the 120 degree to each other. तो ये इस तरह से प्लेस किए गए हैं 120 डिग्री पे, जैसे आपने जो हमें लेमिस थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे भी जो तीनों फोर्सेस लग रही थी when the body was moving up in the upward in the inclined surface, or whether the body is moving in the downward direction in the sloped plane. तो वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग एट द 120 degree to each other. यहाँ पे भी क्या है, the cranks of three cylinders are at the usually placed
placed at an angle of 120 degree to each other. नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास मल्टी सिलेंडर इंजन है या फिर हमारे पास सिंगल सिलेंडर इंजन है तो हाउ विल कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, कल के लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि हाउ विल कैलकुलेट द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जनरली हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है ये कैलकुलेट करते हैं दैट वी गेट द we'll subtract the maximum value from the minimum value from the maximum value, that we will get the subtraction value that will be the fluctuation of energy. So turning moment diagram for a multi-cylinder engine is being shown here. You can see there are 3 positive loops and there are 3 negative loops as well in the turning moment diagram. Similarly, on the y-axis we have shown a turning moment and on the x-axis we have shown the crank angle. So the area have been shown in the figure also. Let us say the area of portion AB is A1, area of portion BC is A2, area of portion CD is A3, and similarly all the areas have been shown in the figure. Figure here, there are 7 vertices from alphabet A to Z. G, you can see AB is the positive loop, then again BC is the negative loop, then again CD is the positive loop, D is the negative loop, and EF is the, this is generally this is basically आर्बिट्रेरी जो है हमने एक एग्जांपल ली है ताकि हम कैलकुलेट कर पाएं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो AG लाइन है दैट इज फ्रॉम A B C D E F G, दिस इज बेसिकली द लाइन ऑफ मीन टॉर्क लाइन। तो ये मीन टॉर्क लाइन है और मीन के ऊपर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज A1, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और A2 आ रही है, ये हमारी क्या है नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि किस पॉइंट तो हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या आ रही है। तो हमने एरियाज ले लिए हैं जो हमारे पॉजिटिव एरियाज हैं दैट इज विच आर द अबव द मीन टॉर्क लाइन, वो हमने लिए हैं A1, A3 और A5, एंड द एरियाज विच आर बिलो द मीन टॉर्क लाइन आर A2, A4 एंड A6। ठीक है, तो दीज एरियाज रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हिच इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो जो हमारे मीन टॉर्क लाइन के ऊपर वाले हैं हमारे एरियाज हैं, ये हमारे क्या होंगे एनर्जी में ऐड होंगे, और जो हमारे नीचे वाले हैं ये हमारे क्या होंगे, नीचे वाले हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द आर्टिकल फॉर कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेशन ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। लेट अस से एनर्जी एट पॉइंट ए इज E, हमने एनर्जी A पॉइंट पे ले ली है, E ले ली है। तो यू कैन सी इन द आर्टिकल हमने A एनर्जी डिस्पोज कर ली है एज शोन इन द फिगर कि A पॉइंट जो है हमारा उसके ऊपर हमने E एनर्जी ले ली है। तो एनर्जी एट B क्या आएगी, एनर्जी एट B क्या आएगी, जहां पे एनर्जी E थी और एरिया की एनर्जी कितनी है हमारी, एरिया कितना है A1, तो ये आएगी E प्लस A1। जब मैं B पे एनर्जी निकाल रहा हूँ तो आएगी E एनर्जी दैट इज एनर्जी एट A प्लस एरिया, एनर्जी एट A प्लस एरिया, तो ये आएगी एनर्जी एट B क्या आ जाएगी E प्लस E1। सिमिलरली अगर मैं C पे एनर्जी निकालने जा रहा हूँ, अगर मैं C पे एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगी एनर्जी एट B माइनस एरिया A2। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं तो एनर्जी एट B क्या थी मेरी E प्लस E1। तो आप कर्सर का देख सकते हैं मेरे माउस का, तो यहाँ पे मैंने क्या था E प्लस A1 था, तो यहाँ पे क्या आएगी एनर्जी एट B माइनस A2 बिकॉज इट इज बिलो द मीन टॉर्क लाइन, तो नेगेटिव में जा रही है तो माइनस A2 आएगा। तो एनर्जी एट B क्या थी हमारी E प्लस A1 माइनस A2। तो सिमिलरली एनर्जी एट D क्या आएगी एनर्जी एट C प्लस A3, क्योंकि जो D पॉइंट का जो लूप है वो क्या बन रहा है अबव द मीन टॉर्क लाइन बन रहा है, यहाँ पे हम इस एरिया को ऐड करेंगे। तो एनर्जी एट D विल बी इक्वल टू एनर्जी एट C प्लस A3। तो एनर्जी एट C क्या है, हमने यहाँ से एक उठा ली E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3। सो सिमिलरली हमने सारी की सारी एनर्जीज जो है कैलकुलेट कर ली, तो जहाँ पे हमारी प्लस हो रही है वहां हमने प्लस कर ली, जहाँ पे हमारी माइनस हो रही है वहां हमने माइनस कर दी। तो सिमिलरली हमने G पॉइंट तक क्या किया, सारी की सारी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। तो आप देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी A पे होगी उतनी ही एनर्जी G पे होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन आइदर बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जितनी हमारी एनर्जी A पे है उतनी ही हमारी G पे होगी, ये हमारा एक कंसेप्ट है दैट इज एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके उसी कंसेप्ट के ऊपर हमने बेस है हमारा ये वाला कि हमारी जितनी एनर्जी A पे रहेगी उतनी हमारी G पे होगी, G पे होगी। ठीक है, क्योंकि जो साइकिल है वो आफ्टर G फिर रिपीट होता जा रहा है। तो हमने ये सपोज कर लिया, इस आर्टिकल से हमने ये सपोज कर लिया कि जो हमारी एनर्जी है वो हमने ले ली B पे मैक्सिमम ले रहे हैं और E पे मैं ले रहा हूँ मिनिमम ले रहा हूँ।
मैं सपोज कर रहा हूँ कि बी पे मेरी मैक्सिमम एनर्जी है और ई पे मेरी मिनिमम एनर्जी है। जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे आप क्या क्या होगा, आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं वो गिवन होंगी, ई की वैल्यू गिवन होगी, एरियाज की वैल्यू गिवन होगी, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूमेरिकल में तो आपके पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है एनर्जी बी पे आपकी 70 आए, सी पे आपकी 60 आए, डी पे आपकी 80 आए और ई पे आपकी 120 आए। तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी ई पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू मेरी सी पे आ रही है। तो उन दोनों को आप माइनस कर देंगे, माइनस करके आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सपोज कर लिया कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो मेरी बी पे है और मिनिमम एनर्जी जो है मेरी ई पॉइंट पे है। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैक्सिमम एनर्जी मेरी फ्लाईव्हील पे कहाँ पे हो रही है, मेरी ई पे, बी पे हो रही है, तो वो कितनी है, ई प्लस ए वन, मैंने यहाँ मेंशन कर दी। और मिनिमम एनर्जी मैंने सपोज किया कि वो मेरी पॉइंट ई पे है, कि मेरी मिनिमम एनर्जी जो है वो पॉइंट ई पे मिनिमम एनर्जी है। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी क्या आ जाएगी, फिर ई की एनर्जी कितनी है, ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा ई, इट इज बीन डिनोटेड बाय डेल्टा ई, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी हमारी कितनी है, दैट इज एनर्जी एट पी, इट इज ई प्लस ए वन माइनस दैट इज minimum energy in the flywheel, which is we have supposed at point E, that is equal to E plus A1 minus A2 plus A3 minus A4। तो यहाँ से हमारे पास E और A1 कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, they will be cancel out with each other, and when the negative sign will be multiplied with the other areas, so it will becomes equal to A2 minus A3 प्लस ए फोर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ई की वैल्यू भी गिवन होगी, एरियाज की वैल्यूज भी गिवन होगी, तो वहां पे आप सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, और जो आपकी जो एरियाज हैं अबव द मीन टॉर्क लाइन आ रहे हैं वो आपको ऐड करेंगे, और जो आपके बिलो द मीन टॉर्क लाइन आ रहे हैं यू विल सब्ट्रैक्ट दैट एरियाज। तो वहां पे आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी जितनी जो वैल्यूज आपकी मैक्सिमम आ रही है, सब में सारी एनर्जीज में से फ्रॉम एनर्जी एट ए टू एनर्जी एट जी, उसको आप उठा लेंगे, और जो आपकी मिनिमम एनर्जी आएगी उसको आप ले लेंगे, और दोनों का आप जब माइनस करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? गोल्ड क्लियर है? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। पहले हमने पढ़ा है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। कितनी हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ रही है, मतलब डेल्टा ई डिवाइड बाय द वर्क डन पर साइकिल, वो हमें देती है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। देखिए आपने पहले पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन क्या होता है, मीन टॉर्क इनटू द क्रैंक एंगल। वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने वर्क डन निकालना है तो ये क्या आएगा, मीन टॉर्क इनटू द क्रैंक एंगल, तो वर्क डन आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो सिमिलरली अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, मीन टॉर्क इनटू थीटा। थीटा क्या है, कितना एंगल टर्न हो गया है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं इस फिगर पे वापस आ रहा हूँ, तो अगर मेरा यहाँ पे एंगल है सपोज करिए पाई है या टू पाई है या पाई एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी जितनी टर्निंग मोमेंट आ रही है उसको मैं एंगल से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वर्क डन पर साइकिल। उस साइकिल पे मेरा कितना काम हुआ वर्क डन, और उसको मैं अगर डिनोमिनेटर में रखकर न्यूमिनेटर में क्या रखूंगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो वो मेरी क्या आ जाएगी, वो मेरी आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो टू पाई किसके केस में हम लेंगे, जो हमारा एंगल है टू पाई मतलब 180 डिग्री, हम 360 डिग्री हम लेंगे फॉर द टू स्ट्रोक इंजन, बिकॉज हमारे टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक होती है एक साइकिल में। लेकिन हमारे एक साइकिल में हमारे फोर स्ट्रोक में क्या हो रहा है, हमारा एक कंबशन इंजन में एक ही हमारे पावर स्ट्रोक में हमारी क्या हो रही है, टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक हो रही है, दैट इज 4 पाई। द मीन टॉर्क हमने ले रहे हैं न्यूटन मीटर में हम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टी मीन विल बी इक्वल टू पी इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन। तो पी बाय डब्ल्यू आ जाएगा। तो पी क्या है, पावर ट्रांसमिटेड, एंड एन इज द स्पीड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट, एंड ओमेगा यू ऑल नो दिस इज द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई n/60। अगर हम जो हमारी स्पीड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट है उसको अगर हम एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 पाई n/60।
2π/60। तो पाई यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो वैल्यू आपने लेनी है रेडियंस पर सेकंड वाली, यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2π और 4π, यहाँ पे पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, बिकॉज हेयर पाई इज द एंगल इन रेडियंस। यहाँ पे पाई क्या है, एंगल इन रेडियंस, रेडियंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द वर्क डन साइकिल अब हमने निकालना है। पहले हमने पावर निकाल ली है, तो वर्क डन पर साइकिल क्या आ गया फिर, T × 60/n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। तो n जो है हमारा कैपिटल N ही हो जाएगा इन द केस ऑफ द स्टीम इंजन और इन द केस ऑफ द टू स्ट्रोक कंबशन इंजन। तो अगर हमारे पास फोर स्ट्रोक इंजन है तो ये क्या हो जाएगा, n/2, क्योंकि एक पूरे रेवोल्यूशन हमारी जब आ रही है तो एक ही क्रैंक एक बार घूम रहा है इन द केस ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन, वेयर एज इन द केस ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन वी विल गेट द टू रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक। तो इसलिए हमारी जो नंबर ऑफ आरपीएम्स क्या है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएंगी इन द केस ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल। कि मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है और मिनिमम स्पीड कितनी आ रही है, उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। पहले हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, उससे पहले हमने पढ़ा है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब हमारा आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, उसी तरह से हम निकालते हैं मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड की। लाइक अगर आपके बाईसाइकिल की आपकी बाइक की स्पीड, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और आपके जो बाइक की स्पीड है वो आप ड्यूरिंग द जर्नी आपकी मैक्सिमम स्पीड रही 60 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम स्पीड आपकी रही 10 किलोमीटर पर आवर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर will be equal to the 50, that is a 50 किलोमीटर पर आवर। 50 आएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल रहे हैं तो वहां पे हम यूनिट्स नहीं मेंशन करेंगे, इट विल बी सिंपली एन इंटीजर वैल्यू, दैट इज 50। सो नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो वहां पे हमने निकाला है पहले मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम वैल्यू माइनस की है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम स्पीड, दैट विल गिव अस द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ जाएगा। तो देखिए मीन स्पीड क्या होती है, हमेशा हम मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड की क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, दैट इज डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये वो हमारी आती है मिनिमम, वो हमारी आती है मीन स्पीड, सॉरी मीन स्पीड आती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या आएगा, दैट इज मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय द मीन स्पीड। तो मीन स्पीड हमने क्या ली है, एन ली है, यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड आ गया डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय द मीन स्पीड। हियर n is the mean speed, n1 I have taken as a maximum speed and n2 I have taken as a minimum speed in rpm during that cycle. So यहाँ पे क्या आ गया, n1 minus n2 by n। तो n क्या है हमारा मीन स्पीड, which will be equal to the average of maximum and minimum speed. So n1 plus n2 by 2, we can put that value of n1 plus n2 here by 2 here, तो ये आ जाएगा n1 plus n2, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 into n1 minus n2 divided by n1 plus n2. If we want to convert it into angular speed, तो similarly 2 पाई जो हमारा बाई 60 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला 2 पाई n बाई 60, जब हम ओमेगा की टर्म्स में लिखेंगे तो 2 बाई 60 हर टर्म में से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 into ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 प्लस 2, एंड सिमिलरली वी कैन राइट इट इनटू द लीनियर फॉर्म आल्सो। सो ये सिमिलरली इसी तरह से बन जाएगा 2 into v1 माइनस v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सो ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द डिजाइन ऑफ द फ्लाईव्हील। इट मे वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस टू व्हिच द फ्लाईव्हील इज बीइंग, कि कहाँ पे हमने जो है फ्लाईव्हील को इंस्टॉल किया है, उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लाईव्हील पे कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ रहा है, कि कहाँ उस मशीन में जो स्पीड है कितनी मैक्सिमम स्पीड अचीव हो रही है और कितनी मिनिमम स्पीड अचीव हो रही है, दैट उसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे उस पॉइंट पे उस फ्लाईव्हील का कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या आएगा। नेक्स्ट एक टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज डिनोटेड बाय cs, दैट इज c सुपरस्क्रिप्ट s, m इज इक्वल टू 1 बाय cs। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा n डिवाइड बाय n1 माइनस n2, क्योंकि हमारे पास cs की वैल्यू क्या आती, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय द
mean speed. So it is n1 minus n2 by n. So when we'll take its reciprocal, it will become as the coefficient of steadiness, which is noted by small m. That is m is equal to 1 by cs is equal to n by n1 minus n2. Next is the last topic of the chapter is energy stored in the flywheel. That how much energy is being stored in the flywheel. की energy जो है flywheel मैंने आपको पहले ही बताया है, the flywheel has the function to store the extra amount of energy whenever there is a more energy as per the requirement of the engine, and whenever there is a deficiency during the cycle, the flywheel supply that extra amount of energy that is being stored earlier to the engine. So flywheel क्या करता है, उस पॉइंट पे सप्लाई कर देता है एनर्जी को. तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं स्लाइड में भी. When a flywheel absorbs the energy, its speed increases, and when it gives up, its speed decreases. So let us say the mass of the flywheel is taken as, for this article, is m in which is taken is in the form of the kg. So let us say small k is the radius of gyration of the flywheel in meters. The radius of gyration you already learn in the case of the strength of materials, you all know. Next is the I, that is mass moment of inertia of flywheel above its axis of rotation, और इसके यूनिट्स क्या है, kg meter square. So n1 and n2 are the taken as the maximum minimum speed during that cycle in rotations per minute, that is rpm, and omega 1 and omega 2 are the maximum minimum angular speed during that cycle in radians per second. So a flywheel is being shown here. So you can see the hubs are shown here, the arms, and outer portion is called the rim. It is similarly look like a wheel of your bicycle or your bike. So now this is the article to calculate the maximum energy or the energy stored in the flywheel. So let us say the mean speed क्या होती है, पहले हमने पिछले आर्टिकल में किया ही है. तो mean speed is equal to the average of the maximum speed to the minimum speed. So it is n1 plus n2 by 2. So similarly हम ओमेगा भी यही आएगा, और cs क्या है हमारा, it is a difference between the maximum speed minus minimum speed divided by the mean speed. So it is n1 minus n2 by n, or it can be written as omega 1 minus omega 2 by omega. You all know what is the formula of kinetic energy. Kinetic energy as per the physics, kinetic energy क्या होती है, half mv square. M is the mass of the body and v is the velocity. But here the flywheel is in the rotating motion. Here the centrifugal forces are also acting on the flywheel. So यहाँ पे क्या हो रहा है, kinetic energy जो है वो लग रही है. तो यहाँ पे बॉडी रोटेशन में है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, मास की जगह हम कंसिडर करेंगे I, that is mass moment of inertia, and omega क्या करेंगे, that is the angular speed. We have to consider it here angular speed. यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is kinetic energy आ जाएगी, जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फ्लाईव्हील. kinetic energy की फॉर्म में क्यों स्टोर होगी, that is क्योंकि यहाँ पे फ्लाईव्हील मोशन में है. जो भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो I क्या है, that is mass moment of inertia, and omega is the angular speed in radians per second. तो kinetic energy होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे ये रोटेशन में, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को रिप्लेस कर दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एम के स्क्वायर. एम के स्क्वायर का मतलब क्या है, एम इज द मास ऑफ द फ्लाईव्हील एंड के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द फ्लाईव्हील एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज के स्क्वायर. तो ये यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, इट बिकम्स इक्वल टू एम के स्क्वायर इनटू omega square. You can see the cursor of the mouse. It is half into mk square into omega square. So as the speed of flywheel changes from omega 1 to omega 2, omega से जो हमने कंसिडर किया वो हमारी इंक्रीज होगी. उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम किनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, वेयर ओमेगा 1 and omega 2 are the maximum and minimum angular speeds in of that cycle. तो हाफ आई कॉमन आ जाएगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर. तो हाफ इंटू आई, तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, दैट इज हियर वी हैव a algebraic formula, that is a square minus b square. So we can expand it. So it is a plus b, a minus b, that is omega 1 plus omega 2 into omega 1 minus omega 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका,
ये क्या आ गया, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू क्या है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू क्या होगा, जहां पे आप देख सकते हैं इट इज 2 ओमेगा, जहाँ इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। दैट इज मीन एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू। तो यहाँ से हम ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू की वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू मेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू मेगा। जब मैंने 2 इंटू मेगा लिखा, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो इट इज हाफ आई इंटू मेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू को रिप्लेस कर दिया 2 ओमेगा से, क्योंकि मीन एंगुलर स्पीड की क्या होती है, इट इज एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड मेरी कितनी है ओमेगा वन, और मिनिमम एंगुलर स्पीड मेरी कितनी है ओमेगा टू। तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, तो ये आ गया 2 ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ओमेगा पुट कर दिया, तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा आई ओमेगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक है। तो अब मैंने क्या कर रहा हूँ, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ओमेगा से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो उस इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा वन से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो जब मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और ओमेगा से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा। अब आप ऊपर जा सकते हैं, मेरे कर्सर देख सकते हैं, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा क्या है, इट इज सी एस। इसकी वैल्यू कितनी है, सी एस है। तो मैंने इस पूरे पोर्शन की वैल्यू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा की वैल्यू मैंने लिख दी सी एस। आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी एम के स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे सपोज की है, पीछे आप देख सकते हैं, पिछली स्लाइड में वापस आ गया हूँ, एम के स्क्वायर। तो मैंने आई की वैल्यू कितनी लिख दी, एम के स्क्वायर, ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ये वैल्यू क्या है मेरी, सी एस। एज पर द प्रीवियस आर्टिकल, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड टू द डिवाइडेड बाय द मीन स्पीड ऑफ द दैट साइकिल। तो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस हमारी मेरी क्या आ गई, ये मेरी क्या आ गई, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। कि मेरी कितनी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, मैंने उसमें से मिनिमम किनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया, तो मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। तो एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। ठीक है, तो ये मेरी आ गई, आप यहाँ पे आर्टिकल आ गया मेरा, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस इज इक्वल टू द स्पीड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम टू ई इंटू सी एस भी लिख सकते हैं। why we can write the value of 2e into cs, because e is equal to 1 by 2 I into omega square. So you can rearrange this value, तो I omega square becomes equal to 2e। तो I omega square जो है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, I omega square will become equal to 2e। तो 2e into cs will be the energy stored in the flywheel. So this and your flywheel chapter, it was very a small chapter। ये आपका आज चैप्टर जो है वो खत्म हो गया।